So good morning everyone once again. Let's see whether it works here proper or not. We are doing maxima and minimum of a function. So what exactly we do here? Okay, a function will be given and we have to find the maximum point of the function and minimum point of the function. What does it mean? Suppose you have a coordinate axis like this, okay, and there is a curve like this. So every curve has some maximum point and some minimum point, isn't it? So we have to find at what point the function is maximum, at what point the function is minimum, and what are their maximum and minimum values. So I think this has started now. Just a minute. Hope it will work now. Okay. So if you have a coordinate system like this, okay, and you may have a curve, okay, like this. So this can be treated as a tip of the curve, and this is the bottom of the curve. So two things can be asked. They may ask you at what point the function is maximum. When they ask at what point, so this is the point. यहाँ जो ये जिस x के लिए होगा वो हो जाएगा, right? And at what point it is minimum, तो इसके with respect to में जो point होगा वो. And the maximum point क्या होगा? So that will be this point y axis पे जो रहेगा. मिनिमम वैल्यू क्या है वो इधर होगा. तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल आपको मैंने बताया कि this way it is being done. Now how to do using derivative? ठीक है, हम ग्राफ बना के तो करना नहीं है, डेरिवेटिव का यूज करना है, तो कैसे करेंगे? So in your question, you will be given with fx, okay, fx given रहेगा, and they will ask you कि इसका maximum और minimum find करो. So try to understand the steps. Very simple it is. Step number 1, whatever fx will be given, differentiate this with respect to x and get f dash x. Get f dash x. Okay. Call this as number 1. Then f dash x जो भी होगा उसको वापस से डिफरेंशिएट करो. सो डिफरेंशिएट अगेन. कुछ तो प्रॉब्लम है यार लैपटॉप में आज. डिफरेंशिएट मैं लिख रहा हूँ and it is getting. Differentiate again with respect to x. So what will I get then? I will get f double dash x. Call it as number 2. Okay. So step number 1 and step number 2 is clear, everybody? Whatever function may be given, you have to differentiate it, and then you have to again differentiate it. So f dash x, f double dash x, you'll have to find. After this, equate f dash x equal to 0. So you will write, consider
f dash x equal to 0 from 1. So whatever f dash x you would have got, जो भी आपको f dash x आया होगा, वो f dash x को आप इक्वेट टू 0 करोगे. आप जब इसको इक्वेट टू 0 करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपको क्या करे मिलेगा, कुछ तो x के वैल्यूज मिलेंगे. हो सकता है यू मे गेट 2 वैल्यू, यू मे गेट 1 वैल्यू, बट डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. आई एम अज्यूमिंग कि सपोज इफ यू गेट x का वैल्यू एज a and another value of x you get as b. Okay, so step number 1, first derivative. Step number 2, second derivative. Step number 3, first derivative equated to 0. And step number 3, अब हम लोग like after equating to 0 you solve this. Solve करने के बाद you get what, x का value. Now what you have to do, you have to put these x का value one by one in double derivative. In double derivative. Okay, so what you will do, you will put there is some, see I'm not able to write only, कर्सर का some problem लग रहा है मुझे. It's not helping restarting. Actually लैपटॉप का कोई तो जो की है ना वो प्रेस हो गया है, तो कितनी भी राइट में लेके जाओ लेफ्ट में ही जा रहा है. ठीक है, जाने दो, अभी में नहीं यूज करेंगे. बार बार प्रॉब्लम आ रहा है. तो मैंने क्या क्या बताया आपको. So fx will be given, you will have to get f dash x, then you will have to find out f double dash x, correct, and then you will compare the first derivative with 0. Whatever x ka values you will get, you will put them in, f double dash x. Now suppose मैंने x a put किया f double dash x में, डबल डैश a हो गया, तो ये जो आंसर मुझे आया सपोज 5 आया, और x इक्वल टू b पुट किया मैंने, तो f डबल डैश b जो आया वो -3 आया. सो 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड -3 इज लेस देन 0. सो अगर x इक्वल टू a पुट करने पर डबल डेरिवेटिव आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो हम बोलेंगे कि fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू a. और अगर लेस देन 0 आया तो हम बोलेंगे fx is maximum at x equal to b. Just a minute.
यस स्टूडेंट्स, हाँ, सो आई वाज हियर। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो मिनिमम नहीं होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम मिलेगा। सबको ये दिमाग में सेट हुआ? एवरीवन क्लियर विद द डाउट, लाइक कंसेप्ट? सम करेंगे एक दो, फिर समझ में आएगा आपको बेटर वे। ओके, okay. Now you can see the ninth question. Ninth question. We have to find the maximum and minimum value, and this is the first question of that. ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है, तो the very first step will be what? Differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx, which is equal to 3 5s are 15x square plus 4x minus 3. Call it as number 1. Then differentiate again with respect to x. You will get d2i by dx2, and the derivative will be 30x plus 4. Everyone understood the first two steps, बच्चों? Okay. After that, what we have to do? Now consider first derivative equated to 0. So first derivative is 15x square plus 4x minus 3 equal to 0. Now 15 3s are 45. This is a quadratic equation. We have to solve by factorization. 45 का ऐसा फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए, तो 9 5s are 45. तो 15x square plus 9x minus 5x minus 3 equal to 0. 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 5x plus 3, minus 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5x plus 3 equal to 0. So 5x plus 3 and 3x minus 1 equal to 0. If you solve this, you will get x equal to minus 3 by 5 or x equal to 1 by 3. सबको यहाँ तक अभी समझ में आया हमने कैसे f dash x को 0 लिया और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट किया? ओके
Now, after this, what do we do? Now we will put each of them in double derivative. So put x equal to minus 3 by 5 in equation 2. So equation 2 क्या है? f डबल डैश x इक्वल टू जो भी है उसमें x के जगह हम ये पुट करेंगे. तो 30 इंटू minus 3 by 5 plus 4. So I think this is 5 6 and 6 into minus 3 is minus 18 plus 4. So it is coming out to be minus 14, which is less than 0. So what we can conclude here? Therefore, fx is maximum at x equal to, कौन सा x का वैल्यू पुट किया? माइनस 3 by 5. इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा क्योंकि वो लेस आया है. सबको समझ में आया? हमने अभी तक देखो क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड फंक्शन का मिनिमम वैल्यू. तो हमको ये पता चला कि फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है. तो फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है? माइनस 3 by 5 पे. तो आप फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस वाले पॉइंट को फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर आई विल राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, जो फंक्शन है उसमें x के जगह आप ये पुट करोगे. सो माइनस 3 by 5 का क्यूब 2 इंटू minus 3 by 5 का स्क्वायर देन minus 3 into minus 3 by 5. Just calculate and give me the final answer. Complete till here, all of you. Maximum value तक. Okay, Priya has given the answer 36 by 25. All of you please confirm this. 36 by 25.
डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड नहीं करना है, फ्रैक्शन में ही रखना है। ओके, जल्दी बताओ बच्चों, हो गया सब बाकी लोगों का? Those who have done, they will go for the another next step. What? You will put x equal to 1 by 3 in the double derivative and check what do you get. Yes. So now put x equal to 1 by 3 in equation 2. So f double dash x is equal to 30 into 1 by 3 plus 4. So 3 tens are, so 10 plus 4 is 14. And now 14 is greater than 0. So fx is minimum (19). How did you get, Bimlish? And you are saying 19 is less than 0. How is it? Fx is minimum at x equal to 1 by 3. And again, once you get the minimum कहाँ पर है, तो फिर minimum value. Therefore, minimum value कैसे निकालेंगे? सेम वे, जो मेरा फंक्शन है उस फंक्शन में x के जगह 1 by 3 पुट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो 5 into 1 by 3 cube, 2 into 1 by 3 square, and minus 3 into sorry 1 by 3. Chalo, get me the answer for this also. So it is 5 by 27 plus 2 by 9 minus 1. LCM, if I take 27, so it will be 5 plus 3 twos are 6 minus 27, right? So 5 plus 6, 11. So it will be minus 16 by 27. Absolutely correct. So इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 36 by 25 होगा, जो इस पॉइंट पे मिलेगा, और इसका मिनिमम वैल्यू minus 16 by 27 होगा, जो इस पॉइंट पे मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के निकालने के टाइम क्या हो जाते हैं मालूम है? उनको लगता है कि ये -14 ही मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं, देखो एफ डबल डैश एक्स का केवल इतना ही इंपॉर्टेंस है कि वो ये बताता है कि वो ग्रेटर है कि लेस है। बाद में इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हम इसको कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है? सिमिलरली यहाँ भी जो डबल डेरिवेटिव आया, इसको हमने कहीं यूज नहीं किया है, बस वो लेस देन ग्रेटर देन से हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमा है और मिनिमा है। और बाद में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वो तो फंक्शन का निकालना है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को वी विल सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन and we can get the answer. Okay, so this type of questions can come for 3 to 4 marks in your exam. So please kindly take a note of this. If it is done, let me know. We will go ahead with the next question then.
those who have done, they can start with the second problem. Fx equal to, you all try by your own. Okay, so I'll clear the things now. Now next question, that is second one. Fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. Okay, so just solve this step by step. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू मिलेगा, फिर डबल डेरिवेटिव में पुट करो, स्टार्ट करो, फिर मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ. चलो, let me also solve this simultaneously. So you would have differentiated with respect to x. So f dash x is equal to 3 2s are 6x square minus 42x plus 36. Number one, differentiate again f double dash x 12x minus 42. Then f dash x को 0 से इक्वेट किया, that is 6x square minus 42x plus 36 equal to 0. I think 6 is common, we can take 6 से कॉमन लेके राइट में लेकर गए, या तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 1s are 6 7s are 6 6 are. Now it's a quadratic. 6 का ऐसा फैक्टर जो -7 देना चाहिए. 6 1s are 6. Okay, so x common, x minus 6 minus 1 common, x minus 6 equal to 0. अब ये सब क्वाड्रेटिक में you should be fast enough to find out the answer. अब ये सारी चीजें 10th की है, आपको ये सब आनी चाहिए, राइट? ये दो वैल्यू मिल गए हमको. अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, तो f डबल डैश x क्या होगा, 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42 इक्वल टू 30 ग्रेटर देन 0. देयरफॉर ग्रेटर मतलब मिनिमम, fx is minimum at x equal to 6 and therefore minimum value क्या होगा, तो फंक्शन में x की जगह 6 पुट करेंगे. So it will be 2 into 6 cube, 21 into 6 square, 36 into 6 minus 20. जो भी सॉल्व करके आएगा that will be your final answer. This is step 1, मतलब पहला वाला पॉइंट.
अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वैल्यू है 1, सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 12 इंटू 1 minus 42. 12 minus 42 is minus 30, which is less than 0. Therefore, function is maximum at x equal to 1. Therefore, maximum value of the function, max value is equal to function के अंदर, क्वेश्चन वाले फंक्शन के अंदर x के जगह 1, तो 2 1 क्यूब 21 1 square 36 into 1 minus 20. Solve करो, आंसर बताओ. I think this is 2 21 36 minus 20. So it is 38 minus 41. So it is going to be minus 3. Get me the minimum value also बच्चों. यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू -3 है, राइट? और मिनिमम वैल्यू आप मुझे फाइंड आउट करके आंसर बता दो. और किसी को अगर कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. यस, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? सबको सब स्टेप समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क मी राइट अवे. एक फंक्शन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेटेड टू 0. Solve them to get some value of x. Put them in double derivative. If it is less than 0, it is maximum at that point. If it is greater than 0, it is minimum at that point. Once you get a minimum point and a maximum point, you can put them in the function to get the minimum value and the maximum value. So 6 and 1 are not value, are points. Maximum point, minimum points. Okay. Please get me the answer of this one. Minimum value -128. Okay. किसी को ये नहीं लग रहा है ना कि सर मिनिमम वैल्यू बड़ा लग रहा है, मैक्सिमम छोटा है? किसी को ऐसा फील हो रहा है क्या? नहीं. क्यों? माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, isn't it? तो -128 is too small than -3. So once if it is done, just write message में done. Okay. So now you all start doing the third question. That is simple. थोड़े जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो हम लोग ट्राई करते हैं. फोर्थ वन जैसे देखो, फोर्थ वन, fx is given as x square plus 16 upon x square. Okay.
So differentiate this with respect to x. First step, f dash x will be how much? X square का derivative 2x and 16 as it is 1 upon x square का derivative 1 upon x square का derivative minus n upon x raised to n plus 1, if you remember, minus 2 upon x cube, correct? So it will be 2x minus 32 upon x cube. This is number 1. इसको एक बार वापस से डिफरेंशिएट किया तो f डबल डैश x मिलेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 32 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4. तो ये होगा 2 प्लस 96 अपॉन एक्स रेज टू 4. सबको ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मुझे पूछना भी नहीं चाहिए कि समझा कि नहीं, because you should get the answer of this. Derivative हमने सब कर लिया है. Okay, so now the next step will be consider first derivative equal to 0. So it means 2x minus 32 upon x cube equal to 0. Cross multiply करो तो मिलेगा अपने को 2x raised to 4 minus 32 upon x raised to 3, 0. x raised to 3 उधर गया तो 2x raised to 4 minus 32 equal to 0. इसको सॉल्व करोगे तो 2x raised to 4 32 मिलेगा, फिर x raised to 4 16 मिलेगा. तो x raised to 4 is 16 मतलब क्या हो गया? x is plus or minus 2. Because 2 raised to 4 is also 16 and minus 2 raised to 4 is also 16. So we got the two values of x, right? And one more thing, it is not compulsory also to get the two values of x. ये तो luckily we are getting it. अगर सपोज एक ही वैल्यू आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक ही वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो या तो हमको उसमें मैक्सिमम मिलेगा या तो उसका मिनिमम मिलेगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आप फाइंड करोगे. ठीक है, अभी कोई एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इनफाइनाइट तक तो उसका तो कोई मैक्सिमम ही नहीं हुआ ना, वो तो हमेशा ऊपर की ओर चलते जाएगा, राइट? हाँ, तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया. अब क्या करोगे आप? 1 by 1 पुट करोगे. सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो डबल डेरिवेटिव के अंदर अगर मैंने 2 प्लस 96 बाई 2 रेज टू 4 पुट किया, अभी देखो जरूरी भी नहीं है कि आप डबल डेरिवेटिव को ज्यादा सॉल्व करो. आपको नहीं लगता है कि ये ग्रेटर देन 0 ही है? कम ऑन, हेलो, क्योंकि एनीवेज डबल डेरिवेटिव का तो कोई यूज है ही नहीं ना. डाउट कब होता? नेगेटिव होता. जब यहाँ पर नेगेटिव होता, यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम कुछ सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते. ये तो दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव विल बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली. सो हो गया. देयरफॉर फंक्शन इज ग्रेटर है मतलब मिनिमम होगा, मिनिमम एट x इक्वल टू प्लस 2 एंड देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फंक्शन में x के जगह 2 पुट करोगे, 2 स्क्वायर 16 by 2 square. So it will be 4 and 4 divided by 6. 16 divided by 4 is also 4. So the answer is 8. Understood? हाँ. Now next, put x equal to minus 2 in equation 2. बीच में क्या होगा? So therefore f double dash x is equal to क्या आया है अपने को? डबल डैश है 2 प्लस 96 अपॉन माइनस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट? तो यहां पर क्या मिलेगा? माइनस 2 का होल स्क्वायर भी तो सेम है 2 का स्क्वायर. हेलो, तो डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0? तो इसका मतलब दोनों में ग्रेटर देन 0 आया तो मैं लिखूंगा f(x)
is minimum at x equal to -2 also. Correct? आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, तो एक काम करके पहले ना आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों आप मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना, तो देखो क्या होगा मिनिमम वैल्यू। हाँ, -2 का स्क्वायर 16 अपॉन -2 का स्क्वायर, इट विल बी सेम बच्चों। तो इसका मतलब ये कर्व कैसे होगा मालूम है क्या? ये कर्व कैसे होगा मालूम है? जैसे ऐसा ऐसा होगा ना, तो हो सकता है कि देखो ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, दोनों का मिनिमम वैल्यू सेम है यहाँ पर वाई एक्सिस पे, बट फॉर डिफरेंट एक्स उस मिनिमम वैल्यू आ रहा है। एक एक्स इक्वल टू 2 पर आ रहा है, एक एक्स इक्वल टू 3 पे आ रहा है, बट 2 और 3 पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज पॉसिबल दैट यू मे गेट मिनिमम वैल्यू एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, बट यू कैन क्रॉस वेरीफाई, मिनिमम वैल्यू मस्ट बी सेम, तभी तो वो सेम पॉइंट मिल रहा है ना अपने को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा बोला रहेगा कि वैल्यू फाइंड करो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा फाइंड आउट एट विच पॉइंट द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमको बस यही बताना है, मिनिमम मिल गया, ये स्टेप खत्म यहाँ पर, ये स्टेप खत्म यहाँ पर, हमको फिर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऐसा अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करना ऐसा नहीं, क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू या व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, तो फिर हमको उसका वैल्यू निकालना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, it's already 9:20. You have a next lecture also, right? अच्छा, you don't have. That's great. So let me do one more problem then. 9.5. Fifth one now. फंक्शन क्या दिया है? fx is equal to log x अपॉन x. ओके, देख के क्वेश्चन को ऐसा लगता रहेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, डोंट वरी। आपको जो स्टैंडर्ड समझ में आया वो स्टैंडर्ड को फॉलो करो। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, u बाई वी होगा, x कॉमन, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस log x कॉमन, x का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन v स्क्वायर। If you solve this, this is 1 minus log x whole upon x square. Everyone understood the first derivative? Come on. अच्छा, 8 to 10 lecture बोला था, correct. So then there is no problem. I thought it's 9:15. Okay. So fine. Now differentiate again now. So f double dash x. वापस से u v लगेगा, u by v लगेगा, x स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -2x प्लस माइनस माइनस प्लस 2x log x. Please try to understand this. Whole upon x raised to 4. Correct? So minus x minus 2x can be minus 3x then. So it is minus 3x plus 2x log x, x raised to 4. I can do one more step by taking x common and cancelling them.
क्योंकि नीचे भी x है, तो ये सिंपली हो जाएगा -3 प्लस 2 log x होल अपॉन x⁻³ सबको समझा डबल डेरिवेटिव? ओके, सो नाउ सेम वे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करो। फर्स्ट डेरिवेटिव है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पूरा उस साइड गया, मल्टीप्लाई टू 0 विल गिव यू 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स 0 हो गया। तो यहाँ से log x क्या मिलेगा? log x इज इक्वल टू 1, बट हमको तो x फाइंड आउट करना है, राइट? तो हम सबको मालूम है log x को कैसे सॉल्व करते हैं। log x मतलब उसका बेस ही है, e इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा e⁻1। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में x का एक ही वैल्यू मिला, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव में पुट करोगे तो क्या मिलेगा? डबल डेरिवेटिव you will get -3 plus 2 log e upon e cube। अब log e to the base e तो 1 होता है, तो ये हो गया -3 plus 2 1s are 2 अपॉन e क्यूब। ये हो गया -1 अपॉन e क्यूब। अब देखो e तो पॉजिटिव नंबर है, तो e क्यूब भी पॉजिटिव होगा, बट ऊपर -1 है, तो इसका मतलब गारंटीड ये एक नेगेटिव नंबर होगा। सबको समझ में आया? एंड देयरफॉर आई विल से कि fx is maximum at x equal to e। अब इसमें मिनिमम हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, मैक्सिमम ही होगा क्योंकि एक ही पॉइंट है। और अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो हम फंक्शन में x के जगह e पुट कर देंगे। फंक्शन है log x अपॉन x, तो ये हो जाएगा log e अपॉन e। log e is 1, so 1 upon e is the maximum value of this function। Have you all understood? बच्चों लोग, सब लोग समझ में आया? Please complete it fast and write done if it is done।
Okay, I hope it is done now. Everyone would have understood this. Okay. Fine. So let's move ahead. So all these questions of ninth, build up your basic foundation of maxima and minima. Mostly the questions are asked in the form of word problem from this concept of maxima and minima. So let us try few word problems now and see how we have to solve them. Let us read the 10th question from the textbook. The question is divide number 30 into two parts such that the product is maximum. See students, in any of the maximum or minimum problem, right? You can start solving and get the answer once you know f of x, isn't it? If you don't know f of x, to whom will you differentiate, right? How will you find out first derivative, second derivative equated to 0 and then getting the values, right? So in any of the maxima and minimum problem, our main objective, okay, is to get f of x. Till 9th question, fx was directly given. So there was no problem. But now, since it's a word problem, we'll have to find out what is fx. Is that clear, everybody? Yes, clear? हाँ. अब आपको आएगा कि सर वर्ड प्रॉब्लम में से fx कैसे फाइंड करेंगे? तो जब वर्ड आप वर्ड प्रॉब्लम रीड करोगे ना, तो वो वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से देखो किसको मैक्सिमम करने को बोला है या किसको मिनिमम करने को बोला है. जिस पर्टिकुलर थिंग को मैक्सिमम बोला है या जिस पर्टिकुलर थिंग को मिनिमम बोला है, वही मेरा fx होगा, क्योंकि fx को ही मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं हम लोग, करेक्ट? तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो बोला है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मतलब मेरा जो fx होगा वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए. अब प्रोडक्ट तो होता है टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन, बट यहां पर बोला है डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट्स. सो नाउ लेट्स सी हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो वी स्टार्ट द प्रॉब्लम with some assumption. Okay, so it's very simple problem. We'll start with let the first part of the number be x. Okay, because question hai number 30 is divided into two parts, right? So let the first part of the number be x. So therefore what will be the second part? Yes, मैंने बोला 30 का एक पार्ट 10 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 20 होगा. कैसे निकाला? 30 माइनस 10. तो वैसा ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स. नॉट वाई वी हैव टू अज्यूम, सेम वेरिएबल में अज्यूम करना है. 30 माइनस एक्स. नाउ यू नो द फर्स्ट पार्ट, यू नो द सेकेंड पार्ट, देयरफॉर you can now write down the product. Therefore the product will be how much? X into 30 minus x. So हमको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही तो बोला है ना, राइट? सो हमने प्रोडक्ट निकाल लिया 30x माइनस एक्स स्क्वायर. ये जो प्रोडक्ट आया उसी को हम एज्यूम करेंगे कि लेट fx is this product. And now the question becomes question number 9 now. अब आपको fx मालूम है, आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? अब क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमा, आप सॉल्व करो, आपको आइडिया आएगा. सो आई डिफरेंशिएट दिस. फर्स्ट I get f dash x as 30 minus 2x, correct?
calling as number 1. Differentiating again f double dash x, वो मिलेगा ओनली -2, नंबर 2. अभी देखो बच्चों, यहाँ पर एक गलती करते हैं बच्चे. उनको क्या लगता है, अरे f डबल डैश x -2 आ गया मतलब नेगेटिव. नेगेटिव मतलब हो गया ना प्रूफ, मैक्सिमम है. अरे ये डायरेक्ट कैसे देख लिया आप लोगों ने? पहले आपको f डैश x को 0 से कंपेयर करना है. 0 से कंपेयर करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. उस x के वैल्यू को आपको बताना है कि आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, राइट? तो यू कैन नॉट डू एनी शॉर्टकट इन दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ. So now what we will do, so consider f dash x equal to 0. So it's 30 minus 2x equal to 0. 2x is 30, x is 15. फिर put x equal to 15 in equation 2. अभी luckily equation 2 के अंदर कोई x है ही नहीं, तो मैं 15 पुट कहाँ करूँ, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. And then I have to tell that this is less than 0 and therefore fx is maximum at x equal to 15. क्वेश्चन पूछा था कि which are those numbers, right? Divide the number into 22 parts. तो हमको तो x और 30 minus x निकालना था, हमको मैक्सिमम वैल्यू से लेना देना नहीं है. So once you come to know कि x equal to 15 पे maximum है, so now you can write the answer ना. Therefore, the required parts of number 30 are, एक है x और दूसरा है 30 minus x. तो ये होगा 15, ये होगा 30 minus 15. So it means 15 and 15 is the answer. और आप देख भी सकते हो, आप 30 का कोई दो, बाकी कोई भी दो नंबर ले लो, 30 के दो पार्ट कर लो, बट उसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इससे कम आने वाला है, यही मैक्सिमम देगा. देखो 15 इंटू 15 क्या होता है, 225. अभी 30 का कोई दूसरा लेते हैं हम लोग, 10 लिया और 20 लिया, कितना मिलेगा 10 इंटू 20? 200, लेस देन 225. यू टेक एनी अदर, 11 ले लो और 19 ले लो, you will not get more than 225. So ये एक एग्जाम्पल भी है कि how this concept works. समझा सबको? Okay, so the required numbers are 15 and 15. Okay, please complete this and let me know. Can you repeat the first and last step? First step is I have assumed first part as x, and last step is I got the answer as 15 and 15. The required numbers are 15 and 15. This is what I have understood from your question, Shivam. First and last step. How to get equation? You tell me ना. Have you understood this step? First ये वाला step समझा? Just फटाफट से yes. ये वाला समझा? ये नहीं समझा. सेकेंड पार्ट कैसे है वो नहीं समझा. मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी जब मैंने ये पार्ट बताया. तो तुम खुद सोचो ना, कोई नंबर 30 है, मैं बोलूं 30 का एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? थिंक एंड टेल मी. मैंने बोला 30 का एक पार्ट 5 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, बताओ. हेलो, अच्छा 5 माइनस एक्स, एक्स कहां पर आ गया? मैंने बोला एक नंबर 30 है, अब ये एक्स विक्स को भूल जाओ.
एक नंबर 30 है, उसका उसका एक पार्ट 5 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? शिवम को आंसर करने दो, बाकी लोग मत आंसर करो। हाँ, एक्स कहाँ, 5 माइनस एक्स कहाँ से आ गया? एक्स तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना कुछ भी। आंसर मी शिवम। हेलो मिस्टर शिवम, आर यू देयर? एक नंबर आपको मैंने दिया 30, नहीं पता तो जाने दो, फिर ये आपकी बस की बात नहीं है ये क्वेश्चन दे। ऑप्शन में दे दो ये क्वेश्चन को। 30 का एक पार्ट मैं बोल रहा हूँ 5 है, दूसरा पार्ट नहीं मालूम है। वो स्टेप जाने दो, अभी मैं आपको सोल्यूशन ही नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं स्टेप बता सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है स्टेप बताने में? अभी समझ जाओगे, 4 दिन के बाद ऐसा ही सिमिलर सम आएगा ना, वापस डाउट पूछोगे, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे तुरंत शॉर्टकट वे से सर समझा दे तो मैं समझ जाऊं, है ना? ऐसा नहीं होता है। लर्निंग आपको खुद से समझना है। अभी वापस से आप बताओ, आई एम स्टिक टू दैट। 30 है, 30 का एक पार्ट 5 है, 30 एक नंबर है। हाँ, आपके पास 30 रुपीज है, ठीक है, उसमें से एक पार्ट है 5 रुपीज, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? आई एम अनम्यूटिंग यूर सेल्फ। चलो अनम्यूट हो जाओ और फिर बात करते हैं, तो आपको अच्छे से समझेगा। हेलो, गुड हाँ बोलो, मॉर्निंग सर। 30 नंबर है, उसका एक पार्ट 5 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 25। आवाज लाउड लाउड, जरा आवाज नहीं आ रहा। 25 सर। कैसे आया 25? 30 में से 5 माइनस किया क्यों माइनस किया? क्योंकि 5 अलग से निकाला। हाँ, आपने 30 में से 5 निकाला, ने बोला। क्यों निकाला? मैंने तो नहीं बोला 30 में से 5 निकालो। थर्ट मैंने तो बोला 30 एक नंबर है, उसमें से एक पार्ट 5 है, दूसरा क्या होगा? थर्ट बचा हुआ पार्ट बचा हुआ? पार्ट अच्छा, बचा हुआ होता है सेकेंड वाला पार्ट। हेलो, यस सर। क्या होगा सेकेंड वाला पार्ट, क्या होगा बोला आपने? 25। 25 कैसे निकाला? 30 में से 5 माइनस चलो किया। दूसरा नंबर लेते हैं। एक 100 नंबर है, उसके दो पार्ट है, एक पार्ट है 30, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 70। क्यों? 30 निकाल दिया 100 में से। अच्छा, तो फिर अभी अब ये जरा सम पढ़ो ना जरा। एक नंबर है 30, उसका एक पार्ट है एक्स, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 30 में से x निकाल। तो क्या लिखा है सेकेंड पार्ट? हाँ सर, 30 माइनस x। तो क्या नहीं समझा अभी? समझ गया सर। तो मैंने तो समझाया नहीं। हाँ, यस सर, सॉरी सर। सॉरी नहीं बात है। देखो क्या होगा, थोड़ा ना आप लोग माइंड बंद करके पढ़ाई करते हो। सोचो ना कि कैसे कर रहे हैं। जब जब मैंने वो स्टेप बोला, तब मुझे याद है अदर स्टूडेंट्स विल टेल मी, मैंने एग्जांपल दिया 30 का एक पार्ट 10 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 30 माइनस 10। बट आप क्या करते हो ना, आप ऑनलाइन लेक्चर में सर लोग को सुनने के साथ साथ आप बाकी भी 10 काम करते हो। यू हैव टू बी 100% फोकस। और जहां पर अगर आपको नहीं समझा उधर ही मुझे स्टॉप करो ना। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में आप फर्स्ट पार्ट क्या है, तो एक होता है ना कि फिर आपको जब वहीं पर नहीं समझा था, तो आपने आगे का स्टेप मेरा कैसे फॉलो किया? फिर आपने मतलब एज्यूम कर लिया चलो ऐसा होता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, यू नीड टू थिंक एंड देन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन एट दैट मोमेंट। ओके करेक्ट? सर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। आई होप you all would have done this question also. So moving ahead to the next question, let us do few more word problems. इसके बाद का ही प्रॉब्लम है 11th वन। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो। डिवाइड 20 into 2 पार्ट्स, बट यहां पर कुछ अलग है। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स
इज मिनिमम। वहां पर प्रोडक्ट को मिनिमम करना था, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम है। हाँ, लेट वन पार्ट ऑफ नंबर बी एक्स, so therefore the other part will be what, 20 का पार्ट है ना ये, तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अब हमको क्या निकालना था, पहले प्रोडक्ट निकालना था, राइट। तो हमने प्रोडक्ट निकाला था, अब क्या है, बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम। सबको ये स्टेप समझ में आया, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो बस इसी को तो हमको एफ एक्स लेना है, तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और डेरिवेटिव तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। सो इट्स अप टू यू, आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लो। 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। तो 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ आई डिफरेंशिएट। चलो ये कंप्लीट करो फटाफट अभी। फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 4x minus 40 and second derivative will be minus 40. This is 1, this is 2. Then consider first derivative as 0. So 4x minus 40 is 0. शिवम यादव प्लीज चेक योर कैलकुलेशन यार, -4 कैसे आएगा। कहाँ पर -4 बोल रहे हो आप लोग। अच्छा हाँ, बराबर। मुझे लग रहा है कि x का वैल्यू तुम बोल रहे हो, करेक्ट, ये -4 होगा ना। -4 नहीं, सॉरी 4 ही होगा, करेक्ट। माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, 40 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। हाँ, -4 नहीं 4 आएगा। x इक्वल टू 10 मिल गया। अब हम क्या करते हैं इसको, हम पुट करते, पुट x इक्वल टू 10 इन डबल डेरिवेटिव। तो जो डबल डेरिवेटिव है उसमें कोई x है ही नहीं, वो 4 ही है, और 4 तो ग्रेटर देन 0 है। तो इससे क्या मिल गया, therefore fx is minimum at x is equal to 10। और जैसे ही पता चल गया कि x इक्वल टू 10 पे वो मिनिमम है, so therefore the parts of the number, final answer, therefore the required parts of number are, एक है x 10, that is 20 minus x, so that is also 10, so 10 and 10 is the answer. Done. Understood. Complete this fast and let me know.
Okay, I hope it's done now, everybody. Easy questions, both of them. Okay, so let's go ahead with the next question. That's question number 12. Important one. The question is a wire of length 36 meter. Okay, so there is a wire which is actually 36 meter length. Length is 36 meter. Is bent to form a rectangle. तो इस वायर को बेंट करके हमने एक रेक्टेंगल बना दिया. Find the dimension if the area of the rectangle is maximum. मुझे डायमेंशन फाइंड करना है. डायमेंशन मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ. हमको लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है. अगर ये जो रेक्टेंगल है that will give the maximum area. So students, can you tell me ये जो लेंथ था वायर का 36 मीटर, जब मैंने उसको रेक्टेंगल बना दिया तो वो अब एक्चुअली 36 विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? What can I call this 36 as, with respect to this rectangle? Come on, 10 seconds. With respect to the rectangle, what will be this 36 meter length? Absolutely correct, Yogesh and Anurag. It must be the perimeter, right? Because ये जो वायर है वो ये सारे 4 साइड्स बनने को यूज हुए हैं ना. करेक्ट. सो मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का. सो आइडियली विल स्टार्ट द प्रॉब्लम लाइक दिस, दैट लेट द length of the rectangle is equal to x meters and the breadth of the rectangle is y meter. अभी फिलहाल y यूज कर रहे हैं, बाद में तो हमको किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना रहेगा तो वो हो जाएगा. ठीक है. नाउ पेरीमीटर. सो वी ऑल नो the perimeter of rectangle क्या होता है? is 2 times length plus breadth. Yes, 2 times length plus breadth, but here it is given that it is 36. So 36 is 2 into x plus y. 2 इधर गया. 18 is x plus y. आप क्या करो, यहां से y निकाल लो. y मिल गया 18 माइनस एक्स. ठीक है बच्चों. अब मुझे देखो मैक्सिमाइज किसको करना था? क्वेश्चन के मेन पॉइंट को पकड़ के रखना है. इसको करना था मैक्सिमाइज. रीड करो क्वेश्चन. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी मैक्सिमाइज्ड, राइट? सो नाउ I will start assuming the area. So I'll say let, or what let, I can directly write now the area of rectangle. Okay, so therefore area of rectangle, its length into breadth, so it's x into y, but now we know y as 18 minus x, so it is 18x minus x square. अब मुझे ये एरिया मिल गया. मुझे एरिया को ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना था, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट fx is this, and now all the steps are same. First step, differentiate f dash x, you will get 18 minus 2x. Differentiate again f double dash x, you will get minus 2. Number 1, number 2. Then consider f dash x equal to 0. So 18 minus 2x is 0. 2x is 18, x is 9. Then put x is 9 in equation 2.
So your double derivative will become, already वो -2 है, less than 0. Less than 0 मतलब क्या मिल गया? fx is maximum at x equal to 9. fx is maximum मतलब क्या? fx क्या है? Area. So therefore area of rectangle is maximum when x is 9, and what will be y? Y is 18 minus x. So 18 minus 9, so 9. So इसका मतलब क्या हो गया? आप लिखोगे लास्ट लाइन, dimensions of rectangle, length is equal to 9 meter and breadth is also equal to 9 meter, and hence the solution. सबको समझा क्या ये क्वेश्चन? Okay, kindly take a note of this fast. Okay, I hope it's done, students. Okay. So fine then, we will continue next time. तो जो भी आज क्वेश्चंस मैंने कराया है उसको रिपीट सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम्स, राइट? जो भी हमने डिस्कस किया इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स? ओके.